Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mm. Hallelujah. Praise the name of the Lord. हालेलुया। सबको जय मसीह की। पास्टर राजेंद्र कुमार जॉन जी जय मसीह की। डेजी वीएस जय मसीह की। समीना अशरफ जय मसीह की। संदीप लोटस जय मसीह की। सुनीता गुड़िया जय मसीह की। हालेलुया। रवि प्रकाश गुप्ता जी जय मसीह की। पूजा बिष्ट जी जय मसीह की। हालेलुया। आज हम सभी प्रार्थना करेंगे और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। खास मेरी वाइफ के लिए, विशेष करके मेरे लिए भी, परिवार के सदस्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इंटरसीड कीजिए। हालेलुया। मध्यस्थ की प्रार्थना कीजिए कुछ पल, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह के लहू के द्वारा काम करे और हर बीमारी, कमज़ोरी, मांदगी यीशु मसीह के नाम में दूर हो। प्लीज़ एवरीबॉडी जॉइन योर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स टुगेदर इन द ब्लड ऑफ द लैम एंड प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचस मैन। इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया। बहुत हृदय से, तल्लीनता से की गई प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर उसका आदर करता है स्वर्ग में। तो प्रार्थना कीजिए सभी प्लीज़। हालेलुया। प्यारे खुदावन जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू के साए के नीचे आते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह। आपके पवित्र लहू को हम पुकारते हैं। आपके लहू की जय जयकार हो, लहू की जय जयकार हो। यीशु मसीह जी, अपने लहू से धो दीजिए, रूह जिस्म जान को धो दीजिए। मुझे, मेरी पत्नी को, बच्चों को, तीनों बच्चों को, बुज़ुर्ग माताओं को, दोनों को, भाई और उसके घराने को भी यीशु मसीह अपने लहू से धोइए, अपने पवित्र लहू से धोइए, अपने पवित्र लहू से धोइए, पवित्र लहू से धोइए। प्रभु जी, आपने वादा किया, आपने कहा कि प्रभु, आप कहते हैं कि मैं तुझे बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा। लॉर्ड, यू विल डिलीवर अस फ्रॉम द स्नेयर ऑफ द फाउलर and you will keep us from the pestilence. You will protect us from the pestilence. The pestilence will not touch us. The pestilence will not wreak havoc against our lives, Lord. For you will shield us. You will hide us in your pavilion, Lord God. Hallelujah. Lord Jesus, I call upon your blood. I call upon your blood over my life, over my wife's life, over our children's life, over to both the mother's life and brother's family and his household. And Lord, everybody that came in the fellowship and the meeting that night, Lord. Hallelujah. We plead the blood of the Lamb. Hallelujah. Plead the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, we plead the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, we plead the blood of Yahushua HaMashiach.
Lord, we plead the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, we plead the blood. Lord, we plead the blood of Yahushua HaMashiach. 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 Father, we plead the blood of Yahushua HaMashiach, the blood of Yahusha, the blood of Yahusha, the blood of Yahusha, the blood of Yahusha. Hallelujah. We come under the blood, Lord. We come under the blood. Hallelujah. सभी हालेलुया प्रार्थना करें हमारे लिए, यीशु मसीह के लहू को रिलीज़ करें हमारे ऊपर सभी मिलके। हालेलुया। वाचा के लहू को खोलें, वाचा के लहू की शक्ति को खोलें, वाचा के लहू की सामर्थ को खोलें। हालेलुया। प्रभु तेरा हमारे संग वाचा है प्रभु। हालेलुया। You made covenant with your people, Lord. You made covenant with us. We are the people of your covenant, Lord. And the covenant is in your blood. The covenant is in your holy blood. Jesus, 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 this is the covenant that cannot never be broken. Lord, this is the covenant that can never be altered. This is immutable, unchanging covenant, Lord God. Hallelujah. And this is the covenant of healing. You said, I am the Lord your God that healeth thee. The diseases that I brought upon the Egyptians, I will not bring upon thee. Hallelujah. For I am the Lord your God that healeth thee. Hallelujah. Lord, this is the covenant of healing that you have with us through the blood of Yahushua HaMashiach. So Lord, we cover our heart, soul, mind, bodies under that blood. And Lord, in Jesus' name, we pray that you release the protection in the blood, that you release the healing in the blood, that you release the immunity that is in the blood, that you release the power and the strength and the anointing that is in the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, hallelujah, show us the glory, show us the majesty of the blood of Jesus, show us the power, the anointing of the blood of Yahushua HaMashiach. Hallelujah, the power, the majesty, the glory, the splendor, the anointing that is in the blood of Yahushua HaMashiach. Release that power over your servant's household, over myself, over my wife's body, over our entire household. Release, Lord, the power, the amazing power of the blood of the Lamb. Release the amazing power of the blood. Hallelujah. Lord, the power that is in the DNA of the blood of the Lamb, the power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Release that power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Release the power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Release the power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Release the power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Release the power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Release the power that is in the DNA of the blood of the Lamb. Lord Jesus, let the power of your blood be unleashed. Let the power of your blood be unleashed. Hallelujah. सभी दुआ करें यीशु मसीह के लहू की कुदरत को, सब मिलके एक मन होके यीशु मसीह के लहू की कुदरत को खोलें हमारे लिए, लहू की सामर्थ को, लहू में छिपी चंगाई को। हालेलुया, खोलिए सभी मिलके। हालेलुया, हालेलुया। Lord, unleash angels now, Lord. I pray that you dispatch Raphael, the angel of healing. Lord, you unleash Raphael, the angel that administers healing. The angels that administers healing. Lord, the angel that administers healing. Lord, the angel that administers healing. 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 Raphael, Lord God, hallelujah. You are Jehovah Rapha. Rapha is your presence of healing. Rapha is your presence of healing. Rapha is your healing presence, Lord. Hallelujah. Rapha is your healing presence. Yahuwah Rapha. Yahuwah Rapha. Hallelujah. Hashem Adonai, Yahuwah Rapha. Hashem Adonai. Hashem Adonai, Yahuwah Rapha. Hashem Adonai, Yahuwah Rapha. Hashem Adonai, Yahuwah Rapha. Hashem Adonai, Yahuwah Rapha. Hashem Adonai, Yahuwah Rapha.
Hashem Adonai Yahuwah Rapha, 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 Hashem Adonai Yahuwah Rapha. Healing anointing, hallelujah. Lord, I draw the hedge of the blood of the Lamb around our family, Lord. Around our household, I draw the hedge. Lord, I draw the hedge of the blood. I draw the hedge of the blood. Lord, I ask you to put the hedge of the angels. Hallelujah. The angel of the Lord encamps around the righteous. The angel of the Lord encamps around the righteous. Lord, hallelujah, I pray for the encampment of the angels. Lord, I pray even for the encampment of the angels that usher in healing angelic beings, hallelujah. May they be unleashed, Lord God. May they be deputed all around our household. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, through the blood, through the precious blood of the Lamb, hallelujah. Lord, through the atoning work of Jesus on the cross, through the finished work of Jesus, there is deliverance, there is healing that is released. Let that anointing be released all around our household, around my children, my wife and myself, over my mother and my mother-in-law, and even over my brother's household. Lord, let that healing unction, let that healing anointing be unleashed. Let that healing anointing be unleashed. Lord, I stand in your presence through the blood of the Lamb. We all stand in your presence. We all agree, Father. We all agree. We come against this sickness, this disease, and Lord, we all join together. हम सब मिलके यीशु मसीह इस रोग को, इस मांदगी को, इस कमज़ोरी को यीशु मसीह नासरी के नाम में झिड़क देते हैं। हम, मेरे जीवन से, मेरी पत्नी, बच्चों के घराने के जीवन से यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा, यीशु मसीह नासरी के जलाली नाम में, यीशु मसीह नासरी के जलाली खून के द्वारा, यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम यहोशा मशीह, यहोशा मशीह, यहोशा मशीह, उस नाम में इसी समय, इसी क्षण इस रोग के, हालेलुया, सभी खुदावंद पूरी ताकत को, सामर्थ को, बंधन को यीशु मसीह के लहू में तोड़ के खारिज करते हैं और धकेल देते हैं अधोलोक में। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते, चंगा करने वाले। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू जीवन देने वाला प्रभु है, तू बल देने वाला प्रभु है, तू सामर्थ से भरने वाला प्रभु है। हालेलुया। तू छुटकारा देने वाला प्रभु है। तेरी महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा यीशु मसीह, तेरी महिमा स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा यीशु मसीह, तेरी महिमा स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा। प्रभु, हम प्रकाश रानी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसे भी छू के चंगा कर, उसकी टांग को छू, उसे चंगा कर खुदावन। हालेलुया। प्रभु, और जितने तेरे लोग समस्या में, प्रभु परेशानी में, रोग में, अलामतों में, उन सबको तेरे आगे उठाते हैं खुदावंद। एक एक के ऊपर तेरा लहू छिड़कते हैं, तेरा खून छिड़कते हैं। तेरे लहू की कुदरत काम करे, तेरे लहू की शक्ति काम करे, तेरे लहू का बल काम करे। हालेलुया। तेरा पराक्रम यीशु मसीह, तेरे नाम की कुदरत प्रकट हो, तेरे नाम की कुदरत प्रकट हो, तेरे लहू की कुदरत प्रकट हो। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरे लहू की जय, यीशु मसीह तेरे लहू की जय। मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। तू पिता के दाहिने हाथ बैठा है, सब कुछ तेरे पाँवों के नीचे है प्रभु। हर एक डोमिनियन, पावर, प्रिंसिपैलिटी, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल विकेडनेस, सब तेरे पाँवों के नीचे है। यीशु मसीह तू शिरोमणि है, यीशु मसीह तू अल्फा और ओमेगा है, यीशु मसीह तू प्रभु और राजाओं का राजा है।
यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय जयकार हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय जयकार हो। यीशु मसीह संदीप की माता को भी तेरे आगे उठाते हैं, उसको भी छू खुदावंद, उसको भी छू के चंगा कर अपने लहू की कुव्वत के द्वारा। यीशु नासरी तेरा धन्यवाद। 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 यीशु नासरी तेरी जय जयकार। यीशु नासरी तेरे लहू की जय। यीशु नासरी तेरी महिमा हो। यीशु नासरी तेरी स्तुति हो। यीशु नासरी तेरी प्रशंसा हो। यीशु नासरी तेरी बढ़ाई हो। यीशु नासरी तेरे लहू की जय। यीशु नासरी तेरे पवित्र लहू की जय। तेरा धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। यीशु मसीह आप धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद। नया जीवन देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपके लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी प्रार्थना करें मिलके। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ ज्वाइन करें आत्मा में मुझे। हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी, तेरे लहू की कुदरत को हमारे जीवनों में एक अद्भुत रीति से खोल खुदावंद। हमारे पूरे घराने के इर्द गिर्द तेरे दूतों का पहरा हो, तेरे खून का साया काम करे खुदावंद। प्रभु अगर कोई भी रोगी या मांदा है इस समय जो ऑनलाइन है खुदावंद, एक एक जन को छू ले खुदावंद, अपने पवित्र लहू की कुदरत के द्वारा छू, अपने लहू की शक्ति के द्वारा छू खुदावंद। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए खुदावंद, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। अनीता रानी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे हुजूर में लाता हूँ, बरकत दे। अमरजीत कौर को छू, राजेंद्र कुमार जॉन पास्टर को, उनके घराने को, संदीप लोटस, साहिल भाई पाकिस्तान से, डेजी वीएस को, सुनीता नार को, लाइट ऑफ जीसस खुदावंद छू खुदावंद। यीशु नासरी शालू गाबा को छू, अपने लहू में छिपा खुदावंद। यीशु नासरी एरिक दीवान के ऊपर तेरा लहू छिड़कते हैं, जॉन थॉमस पे तेरा खून छिड़कते हैं खुदावंद। सुनीता गुरिया पे तेरा खून छिड़कते हैं खुदावंद। पूनम गिल पे तेरा खून छिड़कते हैं, साबी सुरजीत पे तेरा लहू छिड़कते हैं खुदावंद। समीना असरफ पे तेरा लहू छिड़कते हैं खुदावंद। तेरे खून के साए के नीचे अपने लोगों को रख। मीनू सूद को अपने लहू के साए के नीचे रख खुदावंद। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्लीज़ अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखिएगा। हम दिन में 2-3 बार ऐसे इकट्ठे होके इंटरसेसरी प्रार्थना किया करेंगे, तो प्लीज़ प्रार्थना में स्मरण रखना है। हमारे परिवार सबके लिए आपने दुआ मांगना है।
हालेलुया। प्रभु का बल, सामर्थ, शक्ति, चंगाई, शिफा, कुदरत साया करे। हालेलुया। खुदावंद हम लॉरेंस की डेंटल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपका लहू छिड़कते हैं मिस्टर लॉरेंस पे। खुदावंद हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत अद्भुत वचन लिखा है। वहाँ पे लिखा है द एक्यूज़र ऑफ ब्रदरन, भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वर्ड असल में क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो सुनिए ध्यान से, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 10। रेवलेशन 12 वर्स नंबर 10। ये रेवलेशन 12 जो है, मैं मान रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था 23 सितंबर 2017, 23 सितंबर 2017। अगर आप इसे यूट्यूब पे प्रिंट करेंगे 23 सितंबर 2017, तो नासा जो वैज्ञानिकों की एक एजेंसी है अमेरिका में, नासा आपको कुछ वीडियो दिखाएगी। नासा विज्ञान की शाखा मानती है कि 23 सितंबर 2017 को प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की पहली 3 आयतें पूरी हो गई हैं स्टार्स की कॉन्स्टलेशन में। यहाँ पे लिखा है, अगर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ेंगे, एंड देयर अपीयर्ड अ ग्रेट वंडर इन हेवन। तो ये तारों के अंदर ये वंडर प्रकट हुआ था, स्टार्स की कॉन्स्टलेशन के अंदर, आकाश के अंदर 23 सितंबर 2017 को ऐसी कॉन्स्टलेशंस प्रकट हुई। विर्गो की कॉन्स्टलेशन, विर्गो की कॉन्स्टलेशन, और सितंबर के फरवरी मंथ में 2017 के ऐसे लगा कि जैसे विर्गो प्रेग्नेंट हुई, और सितंबर को विर्गो ने बालक को जन्म दिया। जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड करके गया विर्गो के पास से, जैसे कि विर्गो की कोख में से जुपिटर निकला। और लियो कॉन्स्टलेशन के 9 जो मून थे प्लस 3 और प्लैनेट ने मिलके 9 + 3 ने मिलके 12 तारों का मुकुट उसके सर पे बनाया। और उसने सूर्य को ओढ़ा था, उसके राइट हैंड पे सन था उस समय, और उसके पाँव के नीचे था मून। ये कॉन्स्टलेशन विज्ञान बता रहा है, नासा, कि ये पूरी हो गई 2017 में। अब इसका अगला हिस्सा पूरा होने वाला है जल्दी। ड्रैको कॉन्स्टलेशन है एक आकाश में जो अब आने वाली है। तो हम एंड टाइम्स के अंदर रह रहे हैं भाइयों और बहनों। इस जगत में बहुत जबरदस्त एक्सेलरेशन है। अगर आपको मेरी एक पोस्ट पढ़ी होगी तो ये जब यीशु मसीह कहते हैं ना, बिहोल्ड आई कम क्विकली, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तो क्विकली या शीघ्र के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है टाको से अंग्रेजी का शब्द निकलता है टैकोमीटर। जब कोई मोटर चलती है ना, मशीन चलती है, उसके जो रेवोल्यूशन होते हैं, जो गेड़े लगाती है रेवोल्यूशन, उसको मिनने के लिए, उसकी मिनती करने के लिए रेवोल्यूशन की एक मशीन बनाई गई जिसे बोलते टैकोमीटर। अर्थात प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं बिहोल्ड आई कम क्विकली का मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं जब जगत में घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी घटने लगेंगी। सब भविष्यवाणियां जो प्रभु ने की, 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, 21 अध्याय लूका रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा भूकंप होंगे, भूडोल होंगे। प्रभु ने बताया सुनामियाँ आएंगी। प्रभु ने बताया पेस्टिलेंस आएंगी, महामारियाँ आएंगी। प्रभु ने बताया कौम कौम पे चढ़ाई करेगी, लड़ाइयों की अफवाहें होंगी। प्रभु ने बताया मनुष्यों के हृदय कांपने लगेंगे।
अनकैनी फियर होगा, पृथ्वी पे डर होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, सियासी समीकरण बनेंगे और टूटेंगे, और देश देश पे लड़ाई की तैयारी करेगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, लड़ाई की अफवाहें भी होंगी। और फिर प्रभु ने क्या बताया? फिर प्रभु ने बताया इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा, पैसा नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य बताता है कि बीस्ट आएगा, जंतु जानवर, वो सब कुछ डिजिटल कर देगा, और इकोनॉमिक मेल्टडाउन आएगा दुनिया में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पृथ्वी पे धर्म की लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारने और काटने लगेंगे। और प्रभु ने क्या बताया? प्रभु ने बताया आकाश के अंदर निशान प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, सूर्य का रंग काला पड़ जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, और वचन में लिखा तारे अपनी जगह से टूट के गिरेंगे। एस्टीरियन ग्रीक वर्ड है, वो टूट टूट के गिरेंगे। मीट्रियोटिक शावर्स होंगी। आपको मालूम नेक्स्ट मंथ बहुत ज़बरदस्त मीट्रियोटिक शावर्स होने वाली हैं, और विज्ञान बता रहा है कि ऊपर से एक प्लैनेट की डेब्रीज पृथ्वी के ऊपर आके गिरने वाली हैं। तो ये सब बातें घट रही हैं। आकाश मंडल में निशान है, पानियों, समुद्रों के पानियों में निशान है, पृथ्वी के गर्भ में नीचे निशान प्रकट हो रहे हैं, भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं। आपको मालूम पृथ्वी के नॉर्थ साउथ पोल जो हैं आपस में फ्लिप कर रहे हैं, रेडिएशन बढ़ रही है, सूर्य के ऊपर सन फ्लेयर हो रहे हैं, जिससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं संसार के अंदर, और ये सब इशारा कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। प्रभु ने क्या कहा? जब घटनाएं जल्दी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, रेवोल्यूशन, जल्दी जल्दी से कीड़े आने शुरू हो जाएंगे। बिहोल्ड आई कम क्विकली के लिए प्रभु ये शब्द कहते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य में से, इसको हम फिर डील करेंगे। रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 10 आपको देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन जल्दी से पढ़ लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ये सिखा रहे हैं कि कुछ बाइबल टीचर ये सिखा रहे हैं कि मोहरें टूट चुकी हैं, 3 मोहरें टूट गई हैं, चौथी मोहर टूट गई है, तो वो घोड़े निकल पड़े हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भाइयों और बहनों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी पीड़ाओं का आरंभ हुआ है, जच्चा की पीड़ाओं का आरंभ हुआ है। ये शिक्षा जो है, जो वो लोग दे रहे हैं, वो सही नहीं है। बहुत से लोग यूट्यूब पे ऐसी शिक्षाएं डाल रहे हैं कि मोहरें खुल गई हैं। देखिए, जब तक दुल्हन दूल्हा के पास नहीं पहुंचती, तब तक दूल्हा उस पुस्तक की मोहरें नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। तो दुल्हन का उठाए जाना अति आवश्यक है कि दूल्हा उस पुस्तक की मोहरों को तोड़े। तो ये शिक्षा बिल्कुल गलत है, वचन के आधार पे नहीं है। ये जच्चा की पीड़ाओं का प्रारंभ हुआ है। हालेलुया। तो खैर, अभी रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 10, प्रकाशित वाक्य 12 का 10 सुनिए। एंड आई हर्ड ए लाउड वॉइस सेइंग इन हेवन, नाउ इज कम salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night. हालेलुया। फिर किसी समय इस पे और गहरा अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात बतानी चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12:10 में जो घटनाएं घट रही हैं, अब उसका क्लाइमेक्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि शैतान को गिरा दिया गया है। शैतान का डेरा कहाँ पे है इस समय? इफिसियों की पत्री 6:12। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन में लिखा है कि वो प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, वो स्पिरिचुअल विकेड फोर्सेस जो कहाँ पे हैं? आसमानी मकामों में हैं। सेकंड हेवन में है ये, इफिशियंस 6:12 में।
लेकिन तुरंत इनको वहाँ से गिराया जाएगा। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में जो ये 3 आयतें पहली पूरी हो गई हैं, अब अगला सेगमेंट पूरा होने वाला है। बहुत जल्दी ये कॉन्स्टलेशन भी अपीयर होगी आसमान में। और उसके बाद क्या लिखा है, 7 वचन में लिखा है वॉर होगी, लड़ाई। सेकंड हेवन में एक लड़ाई होगी, माइकल फरिश्ता आके लड़ेगा और शैतान को और उसकी सारी सेना को खदेड़ दिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य क्या बताता है, शैतान को पृथ्वी पे गिराया जाएगा, वो बंदों के बीच में आके रहेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा वो अनटू द ड्वेलर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पे रहने वालों के लिए हाय, क्योंकि देखो शैतान तुम्हारे बीच में आ गया है रहने के लिए। तो खैर मैं अभी आपको जो बताना चाहता हूँ, 12 अध्याय के 10 वचन में लिखा है दोष लगाने वाला कौन है। इसे एक्यूज़र ऑफ ब्रदरन कहा गया, दोष लगाने वाला। लेकिन ही ग्रीक जो वर्ड है, यूनानी भाषा का जो शब्द है वो है कतागोरियो। कतागोरियो, 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 ही ग्रीक वर्ड है कतागोरियो, जिसका मतलब क्या है, टू बी प्लेंटिफ, टू चार्ज विद ऑफेंस, टू गो बिफोर द जज। कतागोरियो का मतलब क्या है कि एक ऐसा बंदा जो आपके खिलाफ स्वर्गीय अदालत में मुकदमा दायर करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके आपके खिलाफ पर्चा दायर करता है, एक ऐसा शख्स जो आपके खिलाफ स्वर्ग के जज के आगे जाके पेशी देता है। कतागोरियो, शैतान। तो अब मैं बताना चाहता हूँ ये 2 ग्रीक वर्ड हैं, काता एंड गोरियो। काता का मतलब होता है अगेंस्ट, विरोध में, और गोरियो जो वर्ड है असल में, काता गोरियो, गोरियो का मतलब बड़ा डीप वर्ड है। गोरियो, गोरियो का मतलब है जो आपके विरुद्ध में असेंबली में जाता है। और गोरियो, अगोरा जो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड अगोरा, अगोरा का मतलब होता है मॉल, मार्केट, प्लेस ऑफ कॉमर्स, प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुने, गोरियो, अगोरा जो हिब्रू ग्रीक वर्ड है, अगोरा का मतलब होता है आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका काम, वो मॉल में हो, मार्केट प्लेस में हो या कोई सेंटर ऑफ कॉमर्स हो आपका। काता उसके विरोध में, शैतान जो आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपका काम, आपकी असाइनमेंट के विरुद्ध में है, जो आपको असाइनमेंट यहोवा ने दी है। अब देखिए, जैसे हमें शैतान सिकनेस लाके जो असाइनमेंट यहोवा ने मुझे दी है उसका काम करने की, उससे रोकना चाहता है कि वो असाइनमेंट मैं ना करूं। इस असाइनमेंट के द्वारा बहुत से लोग अंधेरे से निकल के ज्योति में आ रहे हैं। बहुत से लोग जो झूठी शिक्षाओं के साथ, झूठे पासवान, झूठे चारक, वो छूट रहे हैं। पहुंच रहा है लोगों के संग गहरा किया है। आप की जो मार्केट, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मैसेज कीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से, प्रकाशित वाक्य 12:10, कतागोरिया, ये है शैतान, एक्यूज़र, अर्थात जो काम आपको स्वर्ग ने सौंपा है उस काम को वो रोकना चाहता है। जो काम इटर्नल, जिस काम की इटर्नल वैल्यू है, वो काम जिनका अनंतता के संग संबंध है,
जिनकी स्वर्गीय कीमत है जिन कामों की, उन कामों को वो रोकने के लिए अड़ंगा डालता है। कता गोरिया, हालेलुया, उसको रोकना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेकिन प्रभु का वचन क्या बताता है? शैतान जाता है हेवनली कोर्ट में, कत्ता गोरिया आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता है। लेकिन वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन, हालेलुया, अद्भुत वचन। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना कहता है कि हमारा एक वकील है स्वर्ग में। हालेलुया, आपका मेरा लीगल अटर्नी है, हमें रिप्रेजेंट करने वाला है स्वर्ग में कोई। भाई और बहनों, ये मत सोचिए स्वर्ग में आपका कोई नहीं है। जब शैतान स्वर्गीय कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा ले जाता है, दायर करता है, वो सबूत इकट्ठे करता है, उसके बदरुएं, डीमन सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, पूरा आपके विरुद्ध में पुलंदा बना के स्वर्गीय अदालत में पेश करता है। लेकिन वहाँ पे एक वकील है आपका, पहला यूहन्ना 2 का 1 में, हालेलुया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है एडवोकेट, लेकिन ग्रीक वर्ड है पैराक्लीटोस। पैराक्लीटोस का मतलब आपको तसल्ली देने वाला, सांत्वना देने वाला। पहला यूहन्ना 2 का 1 का 2 नहीं है, पहला यूहन्ना 2 का 1। पैराक्लीटोस हमें कंफर्ट करने वाला, हमारा एडवोकेट, हमारा लीगल डिफेंस, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय में एक स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन शुरू कैसे करते हैं? लूका 18 की 1 में कहते हैं कि मनुष्य को प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए, हियाव नहीं खोना चाहिए, कभी भी हियाव नहीं खोना, डिस्करेज नहीं होना, बल्कि प्रार्थना करते रहना है। डिस्करेजमेंट आए तो भी उठ के प्रार्थना करना है। और फिर यीशु मसीह कहानी क्या बताते हैं? एक विधवा की। उस विधवा के विरुद्ध में मुकदमा किया था दुष्ट लोगों ने, और जिस जज की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था वो जज भी दुष्ट था। लेकिन ये औरत क्या करती है? कोर्ट में जाना जज के पास जाना छोड़ती नहीं है, और जज को जाके बार बार बोलती है, मेरे हक में फैसला कर, मेरे हक में फैसला कर। तो वो जज जो है वो प्रभु से डरता नहीं है, उसको गरीबों का फिक्र नहीं है, वो घूस लेने वाला बुरा इंसान है। लेकिन इस औरत के बार बार जाने पे जज क्या कहता है? जज कहता है मैं फैसला इसके हक में कर दूंगा। हालेलुया, मैं इसके हक में फैसला कर दूंगा। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह वही कहानी सुना के एक अद्भुत संदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो ये दुष्ट जज क्या कहता है। ये कहता है कि मैं औरत के हक में फैसला कर दूंगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ये दुष्ट जज इस औरत के हक में फैसला करता है, क्योंकि ये जज के घर में जाना नहीं छोड़ती, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो उनकी क्यों ना सुनेगा, जो दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? प्रार्थना के कई प्रारूप हैं। प्रार्थना हमें जो करनी है, कई शैतानी बीच में चीज़ें हैं जिनको हमने काटना है, कई लीगैलिटीज़ हैं उसके अंदर जिनके ऊपर हमने प्रबल होना है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं कि कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता उनकी क्यों ना सुनेगा। उसके लिए इंग्लिश वर्ड है विल नॉट गॉड विंडिकेट। क्या परमेश्वर उनको विंडिकेट नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उनकी सुनेगा नहीं? लेकिन ग्रीक वर्ड है ग्रीक जो वर्ड है असली भाषा में वो है एक्डीकएसिस। एक्डीकएसिस। यहोवा हमें एक्डीकएसिस करेगा, यहोवा करेगा, जिसका मतलब हमें विंडिकेट करेगा, रेट्रीब्यूशन, वेंजेंस, पनिशमेंट, रिटेलिएट, जिसका मतलब यहोवा बदला लेगा।
जिसका मतलब यहोवा का क्रोध दुश्मनों पे भड़केगा, जिसका मतलब यहोवा बुरों को सजा देगा, जिसका मतलब यहोवा रिटेलिएट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना में रहना है। हालेलुया, प्रार्थना में रहना है। प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम थोड़े समय बाद फिर प्रार्थना सेशन करेंगे और हम सिर्फ हीब्रूज चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे बार बार। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, मैं उसका भेद बताऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है। हम फिर प्रार्थना के लिए इकट्ठा होंगे और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ 2-3 बार हमारे संग मिल के प्रार्थना कीजिए और हम यीशु मसीह के नाम में मुकम्मल स्वस्थ हासिल करके, हम ऑलरेडी हील कर दिए गए हैं यीशु मसीह के कोड़ों की कुदरत के द्वारा। हालेलुया। वो मुकम्मल हीलिंग मैनिफेस्ट हो। हालेलुया। तो मैं फिर एक बार आपके साथ इकट्ठा होऊंगा और हम इंटरसीड करेंगे, मिलके प्रार्थना करेंगे। आप भी अपनी प्रार्थना विनतियाँ मुझे भेजिए, तो हम सब मिलके प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआ करें, सब मिलके एक बार फिर दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप का लहू हमारे ऊपर है प्रभु, मेरे ऊपर, मेरी पत्नी, बच्चों पे, बुज़ुर्ग माताओं पे, भाई के घराने पे, सब पे तेरा खून है खुदावंद। तेरे लहू के ख़रीदे हैं खुदावंद। तेरी वाचा हमारे साथ है, तेरी प्रतिज्ञा हमारे साथ है खुदावंद। तेरे खून की वाचा है, तेरे खून से हम खुदावंद, तेरे खून में छिपे हैं, लिबड़े हुए हैं तेरे लहू के अंदर खुदावंद। हमारे अंदर तेरे खून की धाराएं बहती हैं। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं प्रभु। तेरे जितने लोग हैं इनमें से एक एक के घराने को मैं तेरे लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ, तेरे पवित्र खून के साए के नीचे लेकर आता हूँ, तेरे जलाली खून के साए के नीचे लेकर आता हूँ, तेरे अद्भुत खून के साए के नीचे लेकर आता हूँ खुदावंद। तेरा जलाली अद्भुत सामर्थी खून काम करे खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह। हालेलुया। एक एक जन को छू प्रभु इस संकट की घड़ी में, और प्रभु विश्वास और सामर्थ और कुव्वत से अपने लोगों को भर, और प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़ा खुदावंद, वचन में आगे बढ़ा। हालेलुया। हमारी आंखें परिस्थितियों पे नहीं, रोग बीमारियों पे नहीं, तेरी ओर लगी हों। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तुझे जलाल देते हैं। एक एक जन को छू खुदावंद। Lord, let your hand be upon Sahil brother, Amarjeet Kaur, John Thomas, Ruby Sangira. Lord, on Sunita Nar, Shamina Ashraf, Inder Preet Singh, Lord, Prab Bajwa, Daisy VS, Brother Ravi Prakash Gupta. Let your spirit, your hand be upon Light of Jesus, Darshan Singh, and over Darshan Singh's son whose birthday is today, Lord, and over Sandeep and his mother, Poonam Gill, Lord, Agnes Lal and her family in Delhi, Pooja Bisht, Lord, Rajinder Kumar John, Lord, I cover them all under the blood of the Lamb. तेरे खून के साए के नीचे हम अपने आप को छिपाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम 3 o'clock फिर प्रार्थना करेंगे, सिर्फ इंटरसेशन, और हीब्रूज 11 चैप्टर पूरा बोल बोल के हम पढ़ेंगे सब। हालेलुया। तो प्लीज़ 3 o'clock मुझे फिर ज्वाइन कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।